classes. Am I right about that? Yes, sir. है ना? हाँ, you like it? इधर उधर की बातें होती Yeah. है तो क्लास में. Yes, sir. Obviously. No, yes. Sorry, what? So everyone likes that. अच्छा नहीं, इन द सेंस ऐसा नहीं होता बहुत बार कि इन सम ऑफ द क्लासेस ना वी विल गेट हम कॉलेज में ये करते थे, हम कॉलेज में वो करते थे, है ना? हर क्लास में कोई कहानी आपको सुना रहा है कॉलेज में, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ तो दैट मे हैम्पर यू इन द लॉन्ग रन. मे बी स्टार्टिंग में आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन फिर वो नहीं. तो देयर इज, आप एक ना चैनल है, आई एम सेंडिंग यू ऑन व्हाट्सएप. इट हैज टिल एडवांस लेवल. आप उससे अगर पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं. अच्छा, बट वो बहुत आराम आराम से है, ठीक है. एंड उसमें आपके प्रिपरेशन से ही जो बातें हैं, बस वही बातें, एंड इधर उधर की और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है. तो I have sent you the channel's name. Here you will find all the video lectures. अगर आपको seriously advanced level तक की अगर preparation करना है ना, even if you want to prepare till Olympiad level, then everything is present. If you want to do that, ठीक है. एक चीज तो ये है. Good evening, sir. Good evening. What about then problems? Lecture से तो कुछ नहीं होगा. अच्छा, प्रॉब्लम्स कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं आप? Sir, I have a guide for that. नाम बताइए, नाम. गाइड का नाम बताइए. गाइड मतलब आदमी है क्या, या फिर किताब है गाइड? नाम नहीं पता. 11th and 12th duel. 11th and 12th. Arihant, sir. DB Singh. हरिहन डीसी पांडे. No, sir. 1 second. Arihant. Harihan is the publisher's name. Who is the writer? DB Singh. BBC. DB Singh. DB Singh. I've not heard about this. Especially prepared questions for GE with complete service level surface project. Between the content. So it has MCQs also. Yes, sir. I'm so close. I'm the master. MCQs. So, if you are okay with whatever you are doing, है ना, जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इट इज फाइन. और आपके सवाल अगर बन रहे हैं, मेन बट कीप योर प्रायोरिटी ऑन डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप सवाल कर सकें. And if you are able to solve the PYQs, all the PYQs, then only
carry on with the same level of preparation. But you have been preparing like this from 11th standard या फिर 12th में start किया आपने हर्षा? No, sir. I started in March. You started in March. So right now you're doing 11th or 12th? 11, sir. So right now you're doing 11th. That is वही ज़्यादा सही है. ठीक है. So I think Rishita, you also want to go for JEE, right? Yes, sir. In 11th, you had any preparation on JEE? Not really, sir. I just took classes from Learnivio, but I didn't study on my own. Okay, so you were doing JEE classes on in 11. Hassan sir was taking chemistry, I think. No? Yes, sir. Okay. So how was the format of the classes? Like you had theory as well as questions or only questions? Only questions, sir. He would ask what happened in the chemistry class, like this class, Mhm. and then he would give us questions related to that topic. So how was your 11th? And were you able to solve those questions? Like what was the usual thing? 50-50 solve करके पता था क्या सीन था? No, sir. I couldn't solve a Most lot of of them. questions. Yeah, most of them. Yeah. And so with the questions, you would also take some theory also, right? Like if there is some new theory required, then you would take that theory also with the question while solving the questions, right? Yes, sir. If someone had a doubt, he would take the topic or clear it out for them. And explain. Yeah, no? Now, if you want to like prepare, no? So what I think for is as well. इंटरनेट खराब है क्या फिर से? वो सही है, आप ऐसे करिए हर्षा, है ना? बिकॉज यू स्टार्ट विथ 11th. राइट नाउ बोर्ड्स लेवल का 12th आपका चल रहा है, वो चलने दीजिए. Now try to finish your 11th standard till September because you will get 2 months holiday na, in between June and August, July and So, August. so can you repeat that again? Hmm. I didn't hear what you said. I left the meeting by हाँ mistake. बता दे. हाँ मुझे बता दे. See, Harsha is right now doing the 11th standard portions, okay, on her own. So I would suggest that the same thing that you start doing 11th and have a target. Like you should have a daily target of completing this chapter and this many questions. This many questions, that means from questions from here to here. You should have all the resources available and then only start for any preparation. ऐसा नहीं कि like आज आपने एक वीडियो लेक्चर्स कर लिया, आज आपने 5 सवाल कर लिए, कल नहीं कर रहे. ठीक है, don't be like that. Start with 11 seriously and slowly you start doing all the questions. Obviously you cannot be very slow right now because टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास. You have to treat yourself like you are in a drop year, that you have to complete 2 years syllabus in single year. But आपके पास फायदा ये है कि you have already done the 11th standard. 11th standard किया हुआ. Try to finish 11th standard till September. Okay, try to finish the complete 11th standard. How you will be able to complete 11th standard till September? The reason is you will have 2 month vacation on July and August. So since you are not going to have any school and hopefully थोड़ा सा टीचर्स है ना, आप कन्विंस करके उनको हॉलीडे होमवर्क बहुत ज्यादा देने मत बोलिएगा. Or rather you can do something is like this. If he gives you some holiday homework na, this many questions you have to do in physics or chemistry like that, then आप बोलिए, sir, I am preparing for this and I am doing right now 11th standard. Can I show you? I will do the work. देखिए टीचर तो मेन क्या चाहता है कि आप पढ़ाई करें ना. आप उनसे कहिए कि हम आपको काम अपना दिखा देंगे कि आई हैव नॉट वेस्टेड माई समर वेकेशन. ठीक है, आप अगर आपकी बनती है टीचर के साथ, देन यू कैन टॉक टू हिम और हर एंड tell them that I will show you the work, but right now I'm preparing for 11th. Please track possibility. If he is, of understanding nature, then he will understand. Otherwise, फिर तो आपको डील करना पड़ेगा हॉलीडे होमवर्क्स के साथ. ठीक है, तो आई थिंक सितंबर तक डूएबल है. यू हैव मई जून 4 months. 4 months में 2 months हॉलीडे. सितंबर तक हो जाना चाहिए 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, देन फ्रॉम अक्टूबर यू कैन स्टार्ट. सितंबर का महीना भी रहेगा आपके पास ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने हो गए. 5 महीने तो हो ही जाएगा. 6 महीने 6 महीने 5 महीने आराम से. Then you will have October, November, December. These 3 months you are going to have. अब because you are already in 12th standard and you have been doing at least the boards level वाला, अब आपको थोड़ा सा बस टच करना पड़ेगा किसके लिए? For mains level.
बिकॉज जनवरी में आपके पास मीन्स होगा जनवरी एंड में, बट जनवरी आपको खाली छोड़ना है फॉर रिविजन। ठीक है, यू हैव टू लीव द जनवरी ओपन फॉर रिविजन। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बिकॉज यू आर डूइंग 12th स्टैंडर्ड, अब आपको 12th स्टैंडर्ड में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऑल्सो हैव सम sequence of the lectures at least in chemistry and physics. I don't remember too much about maths, but physics or chemistry, for example, gravitation, there is a chapter in physics, and there is another chapter, gravitation से मिलता जुलता एक chapter है, current electricity, electrostats I think this is the chapter ना। Yes, sir. ठीक है, these two chapters are very similar, right? जो चीज ग्रेविटेशन में मास के साथ होता है वही चीज इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज के साथ होता है, राइट? ये सुनो, सही कह रहे हैं हम, गलत कह रहे हैं? हाँ गाइस, इज इट इलेक्ट्रोस्टैट्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी ऐसे ही कुछ चैप्टर्स है। तो ये सीक्वेंस ना आप कहीं से या फिर देख लीजिएगा, क्या आपको मिल जाएगा वैसे ना, व्हाट सीक्वेंस टू फॉलो, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स आपको क्या फॉलो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, लाइक फॉर एग्जांपल इन केमिस्ट्री विल स्टार्ट विद मोल कंसेप्ट। ठीक है, द व्हेन यू स्टार्ट, अच्छा लेकिन केमिस्ट्री तो हमें को पढ़ाना है, वो हम बता देंगे। ठीक है, केमिस्ट्री तो हमें को पढ़ाना है थोड़ा। आई विल, I just got the message that I have to take the JE classes. I will talk to the team on how many classes you are going. Generally, how many classes did you have, Rashita, for JE in a week for One chemistry? one class, sir. Only one class. Yes, sir. Every Sunday, I think. Yeah, every Sunday. चलिए ठीक है, आई विल ट्रीट इट लाइक 3 classes, बिकॉज अब जब आपके नॉर्मल क्लासेस होंगे ना, उसमें आई विल पुश एटलीस्ट टिल मेंस, एटलीस्ट नहीं, आई विल पुश टिल मेंस लेवल, और इफ टाइम परमिट्स आई विल पुश टिल एडवांस लेवल ऑल्सो। ठीक है, अगर कर रहे हैं किसी चीज को तो अच्छे से ही करें। ठीक है, सो फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक जो आपका लेक्चर होगा, उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स, और अल्कोहल फिनॉल ईथर्स को थोड़ा हम लोग पुश करके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से ऊपर भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिपेयर होकर आइएगा, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके पास आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और ज्यादा चीजें आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होंगी ना, इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर द स्टफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाउ विल यू रिमेंबर इट? बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा। फिर हम लोग जब फिजिकल केमिस्ट्री में, उसी तरह हर्षा will be doing classes in physical chemistry. I will be pushing the level of questions in all the classes upset. ठीक है, since I have to take the advance, uh, the mains level, JE level तक तो लेना ही है, इस वजह से हम वहां तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। So in the last lecture, we did ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अच्छा, before going to stereoisomers and those things, एक सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जनरली आपके पास एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, लेकिन ये इट्स नॉट अ यूजुअल सीन टू सी दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन ये कि दिस आर गोइंग टू हेल्प यू गाइस इन रिमेंबरिंग द रिएक्शंस याद करने में आपको मदद करता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते, एक बार आप लोग लिख लीजिए सवाल को। ठीक है, राइट द क्वेश्चन, तो लिखते लिखते भी तो समझ में आ जाएगा।
Rishita and Harsha, you are doing maths from Learnivio itself, right? या कहीं और से कर रहे हैं maths? Learnivio, sir. Harsha, what about you? Yes, sir, Learnivio. Did you write the question? Just let me know once you are done writing the question. Rishita waiting for you. No, ठीक इस सवाल को देखते हैं. Now, as you can see, the first one, which आपके पास पहला सवाल है, that is BR. So we have a cyclohexane, जिसमें BR attached है, and then we are reacting this with Mg. I think this reaction is quite easy for you guys. Mg क्या करता है, BR वाले BR के साथ insertion कर लेगा, and we will get in the presence of dry ether. I hope you are okay with this reaction. MgBr. Grignard reagent है. Grignard reagent, this is our A. When Grignard reagent reacts with water, we have done this question. What happens? RH का formation होता है. Instead of MgBr, you will get hydrogen here, है ना? Hydrogen यानी क्या बन जाएगा? Cyclohexane. This carbon atom, it had one hydrogen, now it is going to have 3 hydrogen. So this is your structure number B. Make sense? Yes or no, please tell me. Rishita and Harsha. Yes, sir. Rishita, what about you? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. Next is RBr. We don't know what the alkyl group is. Plus we are doing Mg. And then what we are doing? We are adding dry in the presence of dry ether. ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा. So obviously here also what's going to happen? R, that is going to attach with what? MgBr. Does that make sense? Yes or no, please tell me. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे D2O, what is D2O? Tell me, what is D2O? Isotope. What element is deuterium? ठीक है ना, heavy water. This is deuterium, that is an isotope of hydrogen. ठीक है, तो इसको यहाँ पे we use this particular type of reaction in order to know where was, like what was the shape of alkyl group. Alkyl group को पहले Mg से react कराया तो MgBr मिला, फिर उसके बाद we are going to get a alkane. But right now what is going to happen, instead of attaching hydrogen, what we are going to attach, we are going to attach deuterium on the carbon which had Mg. याद आया Rishita and Harsha? Yes or no, please tell me. In the previous question, this carbon had Mg, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगा होगा? ऐसे देखिए, हाइड्रोजन लगा होगा. Now, since we are having deuterium, because please understand, deuterium has one electron and one proton. There is one neutron, but that is not going to influence the reactivity. Reactivity को influence करने के लिए क्या? Protons and electrons. So that is same as that of hydrogen. That is why deuterium is going to show all those reactions that water is going to show. यहाँ पे आपके पास क्या बनना चाहिए? You will have R and D. They have given you the shape that is like this. बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं समझी यहाँ तक? Yes. Tell me, guys. Now this means that I can identify what was the shape of this RMgBr. If the deuterium is attached on the second carbon atom, the MgBr would have also been in the second carbon atom. And if MgBr was on the second carbon atom, the bromine would also have been on the second carbon atom. Does that make sense? Yes or no? Please tell me, Rishita and Harsha. Yes, sir. Harsha, आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. Next is RX, Mg, and also copy कर लेते हैं because so now can you identify what reaction is it? This is a name reaction. Alkyl halide in the presence of sodium and dry ether, giving you an alkane. This is a name reaction. Wurtz reaction, correct. Yeah, the Wurtz reaction में क्या होता है? In Wurtz reaction, you get double the number of carbon atoms.
तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। करेक्ट, yes or no, please tell me। ऐसे ही तो होता है। the alpha carbons, these would be the alpha carbon, makes sense, yes or no? symmetrical मिलता है आपको हमेशा, right? What you get a symmetrical alkane type of thing। यहाँ पे आपके पास this R1 जो है वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 कार्बन, here also CH3, here also CH3, and here you will have halogen atom। Make sense, yes or no, please tell me। Yes, sir. ठीक है, देखिए ध्यान से। Now when we have this, ये तो आपको मिल गया R डैश। अब इसके बाद इसमें Mg डालेंगे, CH3, CH3, MgX, and after addition of water you will get carbon atoms। Okay, H2O। So this will be our ये तो आपके पास D structure हो जाएगा, this will be E structure। Whatever is in the blue that will be your R dash। ये R dash, this is the blue form। चलिए please copy this down। Raise your hand once you're done writing। Waiting for Harsha। Both of you are done। Now we are going to move towards the topic that is stereoisomerism। Stereoisomerism आपको बहुत ज्यादा डिटेल इस तरह से नहीं पढ़ना है। So we are going to learn things which are useful in identification and which are useful when we are doing questions। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना नहीं है। इसी वजह से क्या करेंगे, we are going to choose those topics and we are going to go deeper that much how much it is required। We are not going to go too much deep, we are not going to go in many details right now। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या लिखिएगा, टॉपिक कायरलिटी। कायरलिटी
उसके बाद एक आपको हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखा रहे हैं, कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन वॉट एवर आई एम राइटिंग ना, ये समझ लीजिएगा, गलती से डेफिनेशन बोल दिया हमने। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, नॉट डेफिनेशन। हाउ टू, लाइक व्हेन आई एम राइटिंग अबाउट कायरल कार्बन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कायरल कार्बन। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल आपसे आपके पास इसी से आएगा। कार्बन अटैच टू, कार्बन अटैच्ड टू 4 different groups, 4 different groups। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें CH4 की, so what are the groups that is attached on this carbon atom? We have 4 hydrogen, so this will not be chiral। ठीक है, ये chiral नहीं होगा, ये chiral नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कार्बन एंड यू हैव 4 ग्रुप्स अटैच्ड। एक इसमें ले लेते हैं हाइड्रोजन, द अदर वन इज ब्रोमीन, द अदर वन इज क्लोरीन, द अदर वन इज ब्रोमीन। इफ यू लुक हियर, what are the groups attached? Hydrogen, bromine, chlorine and bromine again। ऑल 4 आर नॉट डिफरेंट, है ना, सारे के सारे तो डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। देयर इज ब्रोमीन और दूसरा भी क्या है, ब्रोमीन। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नॉट बी कैरल, ये भी कैरल नहीं है। अगला, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, नाउ वी हैव 3 कार्बन एटम्स, है ना, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे चलिए चलिए ठीक है, 3 कार्बन एटम्स। नाउ इफ आई लुक एट दिस कार्बन एटम, ध्यान से देखिएगा, दिस कार्बन एटम इट विल हैव 4 बॉन्ड्स, जिसमें से 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये तो कैरल कार्बन नहीं हुआ। ठीक है, let's see this one, this will also not be chiral carbon because both of these carbon atoms are same। यहाँ पे भी आपके पास 3 हाइड्रोजन होगा। मेक सेंस, yes or no, please tell me, यहाँ तक हर्षा एंड ऋषिता Yes, sir. बताइए, ये Yes, दोनों sir. नहीं होंगे। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम इट हैज 3 बॉन्ड्स, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। नाउ सिंस इट इज थोड़ा सा बड़ा टाइप का है ना, तो इस वजह से क्या करेंगे आप, यू आर गोइंग टू राइट ऑल द 4 ग्रुप्स दैट इज अटैच्ड हियर। एक तो Br आपके पास अटैच है कार्बन में, दूसरा हाइड्रोजन अटैच्ड है, तीसरा क्या है, दिस ग्रुप, व्हाट इज दिस ग्रुप, CH3 ग्रुप। Then you have this group. What is this group? CH3 group. As you can see, these CH3, CH3 are same. ये molecule, ये कार्बन एटम भी क्या है? This is also not chiral. Make sense? ये भी chiral कार्बन नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब लेकिन वहीं पे देखिए, if you have something like this, Sir, hydrogen can be a group. हाँ ग्रुप, 4 डिफरेंट मतलब एटम्स ग्रुप्स। ठीक है, Okay. जैसे ब्रोमीन भी तो एटम ही था ना, लेकिन उसको हम लोग ग्रुप मान, मतलब एक चीज से अटैच। ठीक है, आप अगर मतलब स्पेसिफिक करना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, बट मेनली आइडेंटिफिकेशन है, सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, इसको ही हम बोल रहे हैं ना, ये डेफिनेशन नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सर। ठीक है, अच्छा, इफ आई लुक एट दिस कार्बन एटम यहाँ पे, तो यू सी हियर 3 हाइड्रोजन, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिकॉज वेन एवर यू हैव 1 हाइड्रोजन, तो उसमें सारे ग्रुप्स को, बाकी ग्रुप्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पे यू हैव 2 हाइड्रोजन, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर सेम, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से 3 हाइड्रोजन, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस कार्बन एटम जिसके पास एक हाइड्रोजन। ठीक है, इन 1 हाइड्रोजन व्हाट आर द ग्रुप्स वी आर हैविंग, Br, उसके बाद एक हाइड्रोजन है, उसके बाद वी हैव दिस ग्रुप, दिस इज CH3, एंड देन वी हैव दिस ग्रुप, दिस इज C2H5। ऑल 4 आर डिफरेंट, yes or no, please tell me, Yes, sir. क्या ख्याल है ना। सो दिस विल बी कायरल। ये कार्बन एटम यहाँ पे कायरल कार्बन को स्टार मार्क से दिखता है ऐसे, दिस इज कायरल कार्बन, और ये फिर मॉलिक्यूल उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल राइट, नंबरिंग करेंगे तो हम यहाँ से 1 2 3 4 होगा। आई कैन से दैट सेकेंड कार्बन इज कायरल। ठीक है, गॉट दिस, इज प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. नोट दिस डाउन, है ना, रेज योर हैंड वंस यू डन, नोट डाउन कर लीजिए।
वेटिंग फॉर रशिता। अभी एक सवाल है आपके पास इसका। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है, आसान सवाल है। आइडेंटिफाई द chiral molecules in each of the following pair of the compounds। ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्लास 11 में आप लोगों को तो पढ़ाया नहीं गया था, थोड़ा सा शायद हम आपको बता देते हैं। दिस वेज है ना, ये आपके पास जो डार्क वाला कलर है ना वो वेज है, उसको समझ लीजिए वो स्क्रीन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है ना। द डैश इज गोइंग बिहाइंड। जो डैश मतलब क्या, धुंधला धुंधला दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसको डैश दिखा दिया। एंड इफ यू हैव समथिंग बोल्ड दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन दैट इज नियर यू, द CSV is far, उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पॉइंट ऑन द कार्बन एटम एंड देन सी, लाइक यू हैव टू लुक एट ऑल द कार्बन एटम्स, है ना। आप यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो इसको इग्नोर कीजिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा सारे ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, ठीक है, उस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे एक तो कंफ्यूजिंग कर दिया है एनसीईआरटी ने। आप इसको क्या कीजिए ना, ये 1 नंबर नहीं है, ये ए है। ठीक है, ए का 1 और 2, ये बी का 1 और 2, और ये सी का 1 और, ठीक है। ए बी सी में आपको बताना 1 कायरल है या 2 कायरल है, बी में आपको बताना 1 कायरल है या 2 कायरल है, सी में आपको बताना 1 कायरल है या 2 कायरल है। बात समझ में आ गई? ये सोनो पी सलमी जी Yes, बताएं। sir. Yes. यस ना, ठीक है। Sir, can we send in Zoom chat? हाँ हाँ, भेज दीजिए। दिस ओके, हर्षा सेंट। ठीक है, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। हर्षा, चलिए ठीक है, एक बार रिश्ता भेजते हैं, ऐसे उसको सॉल्व हम करेंगे।
Yes, Rishita, you need more time. No, sir. One second. अरे रिश्ता तो आप सवाल ही नहीं समझा आपने। व्हाट डू यू मीन ए कायरल बी कायरल? ए में आपको बताना ना इन दोनों में से वन और टू में से कौन कायरल है। ठीक है, ये ए नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन में यू हैव टू मॉलिक्यूल्स, वन और टू। अब होता है ना वन कायरल है या टू कायरल, फिर बी नंबर क्वेश्चन है तो बताना वन कायरल है या टू कायरल। गॉट इट रिशिता? Yes, sir. भेजिए। हाँ, कौन सा कायरल है बस वही बता दीजिए। ए में कौन सा कायरल है, बी में कौन सा कायरल है, उसका से बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखिए, है ना। तो वन और टू में और ए और सी में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इवन इन दिस वन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज कायरल। आपने इसको देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, बट यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द CH2s आर नेवर गोइंग टू बी कायरल। You have to see a carbon atom which is only having how many hydrogens? One hydrogen. ये वाला कार्बन एटम है जिसके पास एक हाइड्रोजन। Now what are the groups it is having? This group is C2H5 and this group is also what? C2H5. That is why what we will see, we will say that it is not chiral। बात समझ में आ गई? ये सुनो पिछल में ऋषिता एंड हर्षा, ठीक है। Yes, sir. बाकी किसी में आई होप डाउट आपको नहीं होगा। यही सेकंड वाला सवाल था जिसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता था। नाउ अब तीन सवाल है। ये तीन सवाल जो है दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सवाल एक एक करके बाद में लेंगे, पहले एक सवाल लेते हैं इसको। नंबर ऑफ chiral carbon present in the following compound। जहां CH2 है उसको तो देखना ही नहीं है, जहां पे CH है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है ना। CH वाले कार्बन को देख के आंसर कीजिएगा। ओके हर्षा। ऋषिता व्हाट अबाउट यू?
दोनों का आपको सेम आंसर मिला है। ठीक है, लेट अस सी। ओ एच एच और इधर सी एस सी, इधर बहुत बड़ा ग्रुप, दिस पैरल इज गोइंग टू बी पैरल कार्बन। सी एच टू को नहीं देखना, इस सी एच को देखेंगे तो बी आर है। उसके बाद दिस होल ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे ओ एच वगैरह है, यहाँ पे ओ एच वगैरह नहीं है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पैरल। यहाँ पे अगर हम देखें देन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पैरल। सो ऑल द थ्री सी एच, जहां जहां सी एच था, ऑल ऑफ दोज आर व्हाट पैरल। ठीक है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज ए आई ट्रिपल ई, जो कि पहले मेंस था, मतलब मेंस का पुराना नाम ए आई ट्रिपल ई। ठीक है ना, मेंस आपको क्या नाम। One of the following four structures, all four are carbon, only one and two only इसको। ओके हर्षा, Rishita, waiting for you. Are you confused about this one, Rishita? Yes, sir. अरे भाई, इसमें दो तो हाइड्रोजन हो गया ना, खत्म बात। वो ठीक है, इसमें तो होगा ही नहीं कभी, बिकॉज इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, वो अलग बात है। लेकिन आपको क्या कंडीशन क्या है? कार्बन एटम शुड हैव ऑल फोर ग्रुप शुड बी डिफरेंट, सारे डिफरेंट है ही नहीं इसमें। यहाँ पे भी चली थी, ये तो आसान सवाल है, ये यही दिक्कत हो जाती है, ये ट्रिपल ही देख के मेंस लेवल पे देख के आपको कुछ खराब हो जाता है। दिस कार्बन एटम अभी एनसीईआरटी में रहता है, यही सवाल तो हो जाता है। C2H5, C3H7, CH3, ऑल थ्री आर डिफरेंट, एक हाइड्रोजन, तो ये तो आपके पास कह रही है। सेकेंड वन, यहाँ पे आपके पास, अच्छा ये कार्बन में और चार ग्रुप तो है ही नहीं, तो देखना ही नहीं। इफ यू शुड हैव ऑल फोर शुड बी डिफरेंट, चार डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसको नहीं देखना, सी एच वाले को देखना। सी एच वाला यहाँ पे आपके पास है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सी एच वाले को ही देखना, इफ यू डोंट हैव सी एच, लेट सपोज यहाँ पे बी आर होता तब बीस को देख लेते। ठीक है, सो मेन थिंग दैट आई वांट टू से व्हेन आई से सी एच को देखना, इट मींस दैट सी एच टू और सी एच थ्री को नहीं देखना रहता है। If I look at the CH, CH3, C2H5, and this is something else, both all of these three are different और एक हाइड्रोजन, तो ये भी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। The fourth one, C2H5, C2H5 same है, CH3 अलग है, तो only what one and two are chiral carbons, chiral compounds। ठीक है, ये one and two हो जाएगा। ठीक, Yes, sir. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपको आइडेंटिफिकेशन का आ गया। अब इसमें आपके पास बोर्ड्स में जो सवाल आते हैं ना, वो सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी। इस तरह के सवाल बोर्ड्स में आते हैं, वो आपके आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद लिखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये जो है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन और definition इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा, दी कंपाउंड्स दैट दी कंपाउंड्स दैट रोटेट प्लेन polarized light, that I'm going to call PPL, plane polarized light, in clockwise direction, in clockwise चलिए ठीक है, अब तुम clockwise और anti-clockwise direction are called
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये तो पहचानने का कोई तरीका नहीं है, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग, लाइक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर दे। सो व्हेन यू हैव लाइट, उसके पास एक फेज होता है दैट इज इन ऑल द डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह होती है सारे डायरेक्शन में होती है। देन यू पास इट थ्रू समथिंग दैट इज नोन एज निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, तो जो प्लेन इसमें क्या करता है, दिस लाइट इज हैविंग अ रैंडम डायरेक्शन, तो उसको एक प्लेन में लेके आ जाता है। ठीक है, एक प्लेन में, यानी कि यू विल हैव अ यूनी डायरेक्शनल टाइप ऑफ फेज ऑफ लाइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है इसके बाद आपको, आफ्टर दिस वी पास दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ कंपाउंड, चाहे वो कंपाउंड खुद ही लिक्विड हो, और वी कैन डिसॉल्व इट इन वाटर एंड मेक इट एज अ सोल्यूशन। ठीक है, आपने एक चीज पे से पास कराया, एंड व्हाट हैपेंड, दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इट रोटेटेड। ठीक है, रोटेट करके यहाँ पे आप एक डिवाइस रख देते हैं। ये डिवाइस आपके पास, इसको हम लोग बोलेंगे पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू मेजर द एंगल बाय विच इट हैज मूव्ड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पोलैरीमीटर क्या करेगा, यहाँ पे वो एंगल मेजर करेगा कितना मूव किया। क्या हुआ, वी हैड अ, आपके पास एक ऐसा लाइट था विच वाज नॉट पैरेलल, जिसके पास फेज जो था उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो सारे डायरेक्शन में था, या फिर यू कैन सी इट वाज रैंडम। देन वी पास इट थ्रू अ निकोल प्रिज्म, एंड व्हाट इट डू, निकोल प्रिज्म में जैसे आपने पास किया उस, इट इज नाउ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। नाउ व्हेन द पीपीएल इट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, ए कंपाउंड, इट गेट्स रोटेटेड। अब जो रोटेट हुआ है, ठीक है, वो रोटेट हुआ है, उसको मेजर करना है कि कितना रोटेट हुआ है, दैट इज डन बाय अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज पोलैरीमीटर। ठीक है, द एंगल बाय विच इट इज रोटेटेड। यहां पे लिख देंगे एक और लाइन, पोलैरीमीटर measures the angle by which plane polarized light rotates। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू वगैरह वगैरह, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलैरीमीटर क्या मेजर करता है, एंगल मेजर करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, उसका कंटेक्स्ट आप लोग को पता है कि वो कहां से आ रहा है, कंपाउंड से आ रहा है, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ सिंस दिस कंपाउंड इट रोटेटेड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। इसको सुन लीजिए, 10 बार दोहरा लीजिएगा, आपको समझने का कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने बताया कि आप, मेरा नाम ऋषिता है सर, 11th क्लास, आपने बताया सर मेरा नाम हर्ष है, दो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है सर। यू हैव प्लेन पोलराइज, डीपर जा सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं जाने की, सवाल कभी आता है कभी नहीं भी आता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि जहां तक आपके पास क्या हो जाए सवाल हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे रोटेट जो करेंगे, अब लॉजिक पे आते हैं। रोटेट दो तरीके से हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक काम कीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, आपको इतना लिखिए, रेज योर हैंड वंस यू डन। ये हम एसएन वाले में ही अगर पढ़ा देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ये लग रहा है ना वियर्ड सा थोड़ा, वो समझ में आ रहा है आपको, उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे सर, राइट हर्षान रशिता, कि क्या क्या होने लगा सर। हम्म, यस हर्षान रशिता टेल मी, कहाँ तो बढ़िया रिएक्शन पढ़ रहे थे, अल्काइलाइट था, किसी कोई रिएजेंट आ रहा था, वहां से कुछ हटाना था, तोड़ना था, ये पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, दैट इज व्हाई आई डोंट टीच दिस इन एसएन, है तो एसएन का टॉपिक ही। रिश्ता, रेज योर हैंड वंस डन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रोटेशन ऑफ पीपीएल। रोटेशन ऑफ
पीपीएल। ठीक है, रोटेशन ऑफ पीपीएल में टू टाइप्स ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल। एक होगा आपके पास क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। then we can have clockwise। आप इसको लिख सकते हैं आप मेरे साथ साथ, clockwise and the other one will be anti-clockwise। ठीक है, so the molecules which rotate the plane polarized light in the clockwise direction, इनको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। And the one which rotates the plane polarized light in anti-clockwise direction, they are known as levo-rotate। लेवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम लोग ऐसे प्लस लिखते हैं और लेवो रोटेटरी के लिए हम लोग ऐसे क्या लिखते हैं, माइनस। और इसके एक नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट द डी फॉर्म, और इसको क्या बोल देंगे, एल फॉर्म। डी फॉर्म और एल फॉर्म। नाउ द कंपाउंड्स which are going to be having same molecular formula, same structural formula, but they only differ in the direction of rotation of PPL। यानी कि एक आपके पास कंपाउंड है जिसमें सब कुछ सेम, बट दैट कंपाउंड, ठीक है, इट इज रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड यू हैव अनदर कंपाउंड जिसमें सब कुछ सेम, बट इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे दो आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट दिस डाउन, साथ साथ लिखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। द कंपाउंड्स with same molecular formula, that means the number of atoms of different elements are same, and structural formula का मतलब the connectivity of the different elements in that molecule, different atoms of elements in the molecule is also same, but only differs in direction of rotation of plane polarized light are called optical isomers। ठीक है, now optical isomers, both of them will be optically active, but एक clockwise rotate करेगा और दूसरा anti clockwise rotate करेगा। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? Yes. Just a second। देखिए यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, आसान सवाल है, ठीक है ना, बस यही है कि उसके टैग को देख के आप लोग थोड़ा सा डर सकते हैं, बाकी सवाल आसान है। ये ध्यान रखना।
कंपाउंड्स या कंपाउंड, बिकॉज इट इज ऑफ एडवांस में आपके पास एमएसक्यू रहता है, मल्टीपल ऑप्शन कैन ऑल्सो बी करेक्ट. सो कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. क्या करें? ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ? दे शुड नॉट हैव एनी कायरल कार्बन. वहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए. कायरल कार्बन अगर होगा तभी वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ठीक है, अब सवाल आसान है, सवाल कुछ हार्ड नहीं. ध्यान दीजिए. What they're saying, compounds that on hydrogenation, क्या करना पड़ेगा इसको? हाइड्रोजनेशन. So you have what? Alkenes. Alkenes का क्या होगा? When you are going to add H2, तभी वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजनेशन. इसका जो एल्कीन बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड खत्म. यहाँ पे यू विल हैव हाइड्रोजन एंड हियर यू विल हैव Br. As you can see, is this optically active or not active? तो देख लेते हैं. This all of these carbon atoms को इग्नोर करेंगे. जहां पे एक हाइड्रोजन उसको देखेंगे. This carbon atom is having bromine, this is having CH3, and it is having a big group here. So right, this is going to be optically active compound. ठीक है, इसका जो हाइड्रोजनेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया. डबल बॉन्ड को इग्नोर करके जो कायरल कार्बन यहाँ पे है वो कायरल कार्बन वहां पे भी रहेगा. अब यहाँ पे देखते हैं. इफ यू आर गोइंग टू लुक एट दिस वन हियर, यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 5. अब ये तो आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी से ही है. दिस CH2 सेम है ना? ऐसे ही तो था ना एनसीईआरटी में. देखिए बस यहाँ पे OH है, वहां पे क्या है? Br है. कैन यू गाइस सी दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी. व्हेन आई एम गोइंग टू हाइड्रोजन, व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड H2 डालेंगे तो क्या होगा? एल्कीन का हाइड्रोजनेशन. यू विल गेट हाइड्रोजन इन दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम. अब ये भी क्या? ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है. दिस ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. लेट अस सी दिस वन. अच्छा, उसी की तरह बिल्कुल सेम ये नहीं है. देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू व्हाट? बस यहाँ पे Br आ गया, इधर हाइड्रोजन पीछे. बट दैट डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे आपके पास C2H5 और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? C2H5 आफ्टर हाइड्रोजनेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? ऑप्टिकली इनएक्टिव. और उसके बाद आपके पास ये सवाल है, इसको देख लेते हैं. लाइक इफ यू आर गोइंग टू व्हेन वी आर गोइंग टू do hydrogenation in this one, then what we are going to get? 1 2 3 4. थोड़ा उल्टा कर दिया हमने 1 2 3 4 को. ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, so here you are going to have Br, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, and here you will have CH3. This is CH3, this is isopropyl group, this is bromine, and this is hydrogen. So all four are different. This is optically active. So B and D will be the correct answers. समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कीजिए जरूर. So if they're chiral, then they're optically active. हाँ, कायरल ही होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव. वो पॉइंट हम लिखा देंगे, भी लिखाया नहीं हमने. आगे बढ़े. इस वन ऑफिशियल में. यस, हर्षन रिश्ता. Yes, sir.
जो रीजन होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, वो रीजन तो होता है आपके पास एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो वो वहां पे इट इज नॉट गोइंग टू बी सिमेट्रिकल, होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, बट अब इसमें अब हम ये दिखा सकते हैं, कैसे दिखते हैं कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें लिखिएगा दी मॉलिक्यूल which is not super intelligible on its mirror image is called chiral molecule। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ कुछ चीजें ना कंफ्यूजिंग आ जाएंगी, ध्यान ध्यान से अभी आप समझिए। अगर हम किसी के बारे में बात करें, एक मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात हो रही है तो वो उसके बारे में क्या बोलेंगे? इफ इट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज देन इट इज अ कायरल मॉलिक्यूल। लेट अस सपोज वी हैव अ कार्बन एटम जिसमें हमने तीन चार ग्रुप्स लगाए। ठीक है, हम एडिंग ग्रुप्स हियर पी क्यू आर एस। अच्छा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो एस सबसे पहले आएगा, उसके बाद कार्बन आएगा। कार्बन हम यहाँ पे ऐसे सी बना रहे हैं, उल्टा सी नहीं बना रहे, बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट हैव टू मेक द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आप सारे एटम्स तो स्फेरिकल होते हैं, तो कार्बन जस्ट डिनोट कर रहा है कि एक एटम होगा वहां पे, पी एक डिनोट कर रहा है एटम होगा, क्यू डिनोट कर रहा है यहाँ एक एटम होगा, आर डिनोट कर रहा है यहाँ पे एक एटम। ठीक है, नाउ अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो सर सुपर इम्पोजिबल है, इसको पलट दीजिए, डाल दीजिए, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। बट इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपके पास ये डैश है। ठीक है, डैश ऐसे मत लीजिए, इसको आप मान लीजिए दिस इज, बोलिएगा सर क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इट इज अ बेटर वे ऑफ शोइंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्यू क्या होगा? क्यू विल बी डैश हियर, क्योंकि जो वहां पे पीछे, यहाँ पे भी वो क्या रहेगा? पीछे ही रहेगा मिरर इमेज में, तो है ना। मिरर इमेज में मान लीजिए आपके पास कोई क्या बोले, इफ देयर इज एनीथिंग बिहाइंड यू दैट विल बी बिहाइंड द मिरर ऑल्सो, क्यू हो जाएगा। और आर को हम वेज बना रहे हैं, दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये भी क्या होगा? इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन हियर ऑल्सो। अभी तो आप इसको उठा के रख नहीं सकते हैं, फिर गोइंग टू ऐड इट हियर, इट इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल ना, इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। सो व्हाट इफ वी रोटेट दिस? जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे ना, आई एम फ्लिपिंग इट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आई एम फ्लिपिंग इट हॉरिजॉन्टली, ये रोटेट किया हमने, इससे होगा ये द क्यू दैट वाज इनसाइड द प्लेन वो आउटसाइड हो जाएगा, और आर दैट वाज आउटसाइड द प्लेन वो इनसाइड हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है सोनू पीसल? है ना? इफ आई एम गोइंग टू रोटेट दिस, जो चीज आपके पास अंदर की तरफ थी वो बाहर आ जाएगी, और जो बाहर वाली चीज वो अंदर चली जाएगी। डज दैट मेक सेंस? सोनू पीसल मी? Yes. ठीक है, शो भी कर सकते हैं। ये चीज दिख रही है आपको? कैन यू गाइस सी दिस?
टर्न ऑफ माई ब्लर। दिख रहा है आपको? अरे हाँ, या ना तो बोल दो। दिख Yes, रहा है या sir. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक। Yes, sir. साफ दिख रहा है। अब हम क्या करें? ये तो ब्लैक है और मेरे टी शर्ट में ये गुम हो जा रहा होगा। थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख के बताते हैं। इमेजिन कर लीजिए इतना आप लोग, ठीक है। और ये दिस इज ब्लैक, ठीक है ना। ये यहाँ पे है, ऐसे गैप मत समझिएगा, आई डोंट नो, हमको तो थोड़ा सा गैप गैप दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। कौन सा वाला ले? ये लेते हैं ना, दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी। तो यहाँ पे आप देखिए कि दिस कार्बन एटम, ये आपके पास एस हो गया, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। दिस इज योर एस। आप अपने आई एम होल्डिंग द कार्बन एटम, दिस ऑरेंज वन इज योर एस। जो ये ऐसे ऊपर करके ना, वो पी मान लीजिए आप, उसको ऐसे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। नाउ इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट इज इन द स्क्रीन। नाउ दिस इज योर एस, दिस इज योर पी, और आपको जो दिख रहा है ना, दैट इज ग्रीन, और आपके पीछे क्या है? ब्लैक। नजर आ रहा है ये सोनू पीछे? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड। टेल मी ना, एस कौन सा कलर दिख रहा है आपको? एस का कलर कौन सा है? White. एस व्हाइट है। ये व्हाइट है, ऑरेंज है ना। No. व्हाइट, Sir. व्हाइट कहाँ है? ऑरेंज। अच्छा, आप यहाँ भी, यहाँ तो सारे व्हाइट है भाई, ऑरेंज है ना। एंड ये वाला पी हो जाएगा, ब्लू वाला। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? Yes, क्या sir. ख्याल है? पी क्या हो जाएगा आपके लिए? दिस विल बी ब्लू, ठीक है। और आपके लिए बताइए क्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज क्यू इन योर केस? Black. आई थिंक ब्लैक वाला आपके पास है ना, क्यू हो जाएगा, ठीक। ब्लैक इज क्यू, और आपके पास आर क्या हो जाएगा? ग्रीन वाला। सही है, इस वन प्लीज, ठीक Yes, है। sir. अच्छा, अभी हम इसको प्लग इन करेंगे तो वहां पे ए वाले मॉलिक्यूल में सुपर इम्पोज नहीं होगा। आई विल रोटेट इट, ठीक है। तो हमने, देखिए आप, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। अभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा, बिकॉज ब्लू को ऊपर रखना होगा ना, तो ब्लू को ऊपर रखते हैं, ठीक है। चलिए, ब्लू ऊपर हो गया, है ना। क्या ख्याल है अभी? आई एम होल्डिंग दिस एस, क्योंकि एस तो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, कार्बन भी हो जाएगा, ब्लू वाला भी हो जाएगा। बट राइट नाउ आपके पास ग्रीन शुड बी इन फ्रंट, लेकिन अब फ्रंट में कौन आ गया है? व्हाट इज इन द फ्रंट नाउ? Black. Black, है ना। So even while after rotating also it is not superimposable. What we needed in the front is now in the back. ये जो green वाला आप देख सकते थोड़ा सा, green कहाँ पे आ गया? बैक मार्क पर, ठीक है। So when you have all four different ना, तब आपके पास superimposable होने के chances रहते ही नहीं, मतलब कोई possibility नहीं superimpose हो पाएगा, ठीक है। That is why these two molecules they are different. दोनों molecule क्या होते हैं? Different होते हैं, है ना। Just give me a second. कौन? Oh, there was somebody. I'm sorry. आपको अगर लगा हो कि हम किस पे चीख रहे हैं, ओके। सो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कायरल, ए इज ऑल्सो कायरल, बी इज ऑल्सो कायरल, लेकिन बिकॉज दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इनके बीच में एक रिश्ता होता है। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को, बोथ ऑफ दीज आर व्हाट? इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, इनैंशियोमर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए इंडिविजुअली कायरल है, बी इज इंडिविजुअली कायरल, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? दे आर इनैंशियोमर्स। समझ में आ रही है सब ऑफिसर, ये रिश्ता है नर्शा? बोलो। Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. ठीक है। जैसे इनएक्चुअल में क्या होगा ना, लेट अस सपोज ए जो है, दिस रोटेट्स क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ठीक है। तो जो बी होगा, दिस विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ठीक है। पसंद आ रही है? क्लॉकवाइज ये क्या करेगा? अगर इफ ए रोटेट्स द प्लेन पोलराइज राइट इन 60 डिग्री क्लॉकवाइज,
देन बी विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। अगर ये x डिग्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज x डिग्रीज। बात समझ में आ रही है? चलिए Yes. ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स का छोटा सा डेफिनेशन ये पे लिख लीजिएगा प्लीज, ड्रॉ दिस टाइम, डायग्राम को बनाइए। सो लिखिएगा इनैंशियोमर्स आर, इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये डेफिनेशन किसकी? इनैंशियोमर्स। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन द मिरर। तो एक मॉलिक्यूल की बात। इनैंशियोमर्स क्या हो रही है? मिरर इमेजेस की बात हो रही है। दो मिरर इमेज है, उन दोनों के बीच में दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? दे आर इनैंशियोमर्स। कैन यू राइट अनदर लाइन? enantiomers rotate plane polarized light in opposite direction with same magnitude। देखो बना लिया होगा आप लोगों ने, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, होप यू हैव डन राइटिंग दिस। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास एक सवाल आया दैट इज रिलेटेड टू SN1 एंड SN2। यहाँ पे क्या है? व्हाट व्हेन PPL इज पास थ्रू रेसमिक मिक्सचर देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आपको ध्यान हो, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? यू हैव एनैंशियोमर्स इन रेसमिक मिक्सचर, ये सुनो प्लीज मी, लिखा है ना? एनैंशियोमर्स लिखा है ना हम लोगों ने, नहीं लिखा है? बोलो भाई। रेसमाइन, अरे चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हमने। When plane polarized light is passed through racemic mixture, तब क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है आपके पास? यू गेट इन्वर्जन एंड रिटेंशन। ये सुनो, याद आया? 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। ऋषिता एंड हर्षा, Yes, sir. Yes. ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर सेम, लेकिन उन दोनों में फर्क क्या होता है? बस दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, बाकी कुछ उनमें डिफरेंट नहीं होता है। एक आपके पास क्लॉकवाइज और एक आपको एंटी क्लॉकवाइज वहां पे रोटेट करेगा। Because they are what enantiomers in the racemic mixture, then in that case what will happen? The plane polarized light will not rotate. Why will it not rotate? Because racemic mixture में आपके पास एक तो रहेगा जो आपको क्या करे, क्लॉकवाइज रोटेट करे, और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इफ क्लॉकवाइज इज x डिग्रीज, एंटी क्लॉकवाइज इज x डिग्रीज, तो नेट आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा, द रोटेशन विल बी 0 डिग्री। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल नॉट रोटेट व्हेन यू आर पासिंग इट थ्रू अ रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह से एक सवाल आया था इस तरह से, क्वेश्चन वाज प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल तो अल्कोहल है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी का इस वजह से यहाँ पे इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई? प्लस माइनस का मतलब क्या हो? प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब लीवो। दैट मींस वी आर हैविंग बोथ प्लस एंड माइनस। अब यहाँ पे क्या हो? द प्लस 2 ब्यूटेनॉल विल कैंसिल द रोटेशन caused by minus 2 butanol and vice versa, therefore it is what optically inactive। आंसर में आप लोग लिखेंगे because प्लस 2 ब्यूटेनॉल यानी कि द डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला 2 ब्यूटेनॉल
cancels the rotation caused by minus 2 butanol, the levo rotatory wala butanol, and vice versa. Therefore, what will happen? The mixture of these two, it will not rotate the plane polarized light. तो इस वजह से इसके मिक्सर को क्या बोलेंगे? Optically inactive. Therefore, plus minus 2 butanol is optically inactive. Sir, are they enantiomers? Yep, they will be enantiomers. So they won't rotate the PPL. enantiomers के इक्विमोलर मिक्सचर होगा ना, तो वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा। अगर सिर्फ 2 प्लस रहता ना, अगर सिर्फ देखिए प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस मतलब लेवो। इफ यू हैड ओनली द प्लस वन, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता। इफ यू हैड ओनली माइनस, देन इट वुड हैव रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू हैव बोथ ऑफ देम, व्हेन वी राइट प्लस माइनस इन दिस केस ना, देन इट मींस दैट वी हैव इक्विमोलर, दोनों का सेम क्वांटिटी भी है। सो द प्लस वन इट विल रोटेट 30 डिग्री, माइनस वाला प्लस विल रोटेट 30 डिग्री क्लॉकवाइज, the minus one will rotate 30 degree anti-clockwise. Overall net effect क्या हो जाएगा? Zero. तुम्हारी बात हर्षा? Yes, sir. ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर आंसर्स। देखिए हम सारे सवाल इस वजह से कराते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है आंसर में। अनदर क्वेश्चन इज रेसमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली inactive. क्वेश्चन इज वाई, यहाँ पे आंसर लिखेंगे बिकॉज it contains equimolar mixture of two enantiomers. Therefore, the rotation caused by one isomer is cancelled by the rotation caused by other isomer. Therefore, racemic mixture is optically inactive. ठीक है, ध्यान दीजिए। लेट अस सपोज यू हैव, हमने किस तरह से बना रहे कंपाउंड, एक कंपाउंड आपके पास इस तरह का है, ठीक है। नाउ ए बी सी, तो यहाँ पे आपके पास है ए बी सी, ठीक है। वी हैव समथिंग लाइक दिस। Now I have given you some random compound, but एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, like this carbon atom, whatever rotation this carbon atom is going to cause, the same amount of rotation this carbon is going to cause, but in opposite direction, ठीक है। Because देखिए रोटेशन क्यों होता है? रोटेशन occurs because of
asymmetrical carbon atom. Both of these are asymmetrical carbon atom. ठीक है, so this will cause some rotation. This is also going to cause some rotation. अब ये जो रोटेशन कॉज करेगा, लेट्स सपोज दैट इज +20 डिग्री, ये करेगा -20 डिग्री. बोथ ऑफ देम विल बी अपोजिट. अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल, इफ यू आर हैविंग अ मॉलिक्यूल इन विच देयर आर टू कायरल कार्बन्स, यहाँ पे आपके पास एक कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन है, बट स्टिल व्हाट इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, because this chiral carbon is rotating +20, this chiral carbon is rotating -20. Overall, the net effect on the rotation will be 0. Does that make sense? Yes or no? Please tell me, Rishita and Harsha. बोलिए. Yes, sir. अगर ऐसा होता बोल रहे हैं ना, ऐसा मॉलिक्यूल होता वो तो आप छोड़ दीजिए अभी, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे जब जी वाली क्लासेस लगेंगी. तो व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ना, इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इन अ सिंगल कंपाउंड देयर आर कार्बन एटम्स व्हिच आर कैंसलिंग द रोटेशन कॉज्ड बाय ईच अदर. ऐसे कंपाउंड्स में बोलते हैं कि इंटरनल कंपनसेशन इज हैपनिंग. दैट मींस इंटरनली, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यू हैव ओनली सिंगल मॉलिक्यूल सॉल्यूशन, एंड दैट सिंगल मॉलिक्यूल is itself what compensating for the rotation caused by one another. Make sense? Yes or no? Please tell me. Internal compensation. और जो रेसमिक मिक्सचर होता है ना हमारा, ये क्यों पढ़ा रहे थे, बिकॉज इन रेसमिक मिक्सचर आई हैव वन दैट इज क्या, आपके पास ए और बी दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इन्वर्जन प्रोडक्ट, और एक आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट. लेट अस सपोज दिस ए मॉलिक्यूल, इट इज रोटेटिंग -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री, and this will be rotating +20 degree. Right now, what's happening? Right now, this A molecule is compensated by the B molecule. The B molecule is compensated by the A molecule. The molecules which are cancelling, they are two different molecules. The carbons which are responsible for the cancellation of the rotation of plane polarized light are in two different molecules. ऐसे कॉम्पनसेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. ए का कॉम्पनसेशन ए में नहीं है, बाहर है. यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस कार्बन एटम was compensated by a carbon atom which was inside the molecule itself. That's why internal compensation. And this, when the compensation of A, the cancellation of A, the rotation of A, is happening because of these को बोलते हैं external compensation. बस मैं ये सुनो भी समी. Yes. ठीक है, हम एक लाइन लिख देते हैं. Yes, देखिए, sir. these lines are important because of MCQs में आपको ना कुछ भी आ सकता है. They will ask racemic mixture is optically inactive because, अब उसने एक ऑप्शन दिया रहेगा एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है. राइट, वन मोर पॉइंट हियर, जो कि एक वन लाइनर है. It's not explaining anything, but it's stating just the fact. Racemic mixture is optically inactive due to external compensation. बात समझ में आ गई? ये सुनो भी सनी, पिछड़ा है हर्षा. Yes. Yes, what happens? तो अब और ऊपर जाना हो तो बताइएगा. Okay, so done. उसके मैसेज हर्षा एंड ऋषिता, आप लोगों को हमने एक मैसेज भेजा होगा, ठीक है, दैट इज अ वीडियो ऑन ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस. ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक इटसेल्फ. आज दिस टॉपिक माय बैड दिस चैप्टर. ठीक है, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, इसको आराम से आप देखिएगा. तो एक सेकंड, ये वाला नहीं, my bad. नहीं, ये नहीं है. सॉरी 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 सॉरी, ये मत देखिएगा. ठीक है, आई एम डिलीटिंग द मैसेज. ये तो लास्ट में कराया था, रिवीजन टाइम में कन्वर्जेंस. हेलो अल्किन, हेलो.
ठीक है, चलिए, I've sent you now ये वीडियो. You have to watch this video and if you have any doubts ना आप हमको WhatsApp में भेज दीजिएगा. I will explain. है ना. ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा. Now, एक चीज आपको ना, in order to watch this lecture, what you should have with yourself is a few things. You should have the list of reactions, MOP of MOR, MOP of haloalkene and haloarine. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ haloalkene and haloarine. You should have these two. ये आपके पास होना ही होना चाहिए. If you don't have this as one page and this as one page, तो फिर बहुत difficulty होगी. You will have to always flip some pages. ठीक है, तो एक लिस्ट बना लीजिएगा, because in haloalkene तो you know that there are certain